Good morning, officer. Good morning. Just pass me your passport and I-20. Sure. Niharika. So why do you want to go to the USA? I really wanted to go to USA to meet my spouse, and we have some other plans too to explore some famous places over there. So where is your spouse working? He's not working, he's studying, he's pursuing his MBA. Okay, which university? Alliant International University, San Diego. Okay, and what you do in India? I'm working as a software developer at HCL company in Chandigarh. Working as a software developer. What's the last qualification of yours? I've done BTech in computer science in 2020. BTech in computer science. Yeah. When did you get married? It's been 1.5 years. 1.5 years. Yeah. If you can tell me the exact date. It was 9th December 2022. 9th December 2022. Yeah. Good. So when did you meet him for the very first time? Sorry? When did you meet him for the very first time? With my spouse? Yeah. It was an arranged marriage. It was an arranged marriage. Okay. So which program is your spouse studying over there in USA? He's pursuing his MBA, Masters in Business Administration. Okay. And when did you go to USA? It's my first time I'm going to USA. My question is about your spouse. When did he reach USA? When did he start his studies? It's been 1 year. He's It's studying been over there. 1 year. So he's in the second year, right? Yeah. I guess in the third semester. Yeah. Okay, fine. So who is funding his studies and who is going to fund your travel plans and everything? His father is sponsoring him as he has his own business of cement industries. And for me, in my case, I am sponsoring myself. Okay, and how much you earn in a year? My monthly income is around 40,000 and I earn 4,80,000 annually. 80,000? 4,80,000 4,80,000 annually. Yeah. Okay. So apart from your husband, do you have any other relative who is there in USA? No, I don't have any relative or close friends in USA. Have you ever traveled to any other country? No, not yet. This is for the very first Yeah. time. Okay, good. So as you mentioned, you're working as a software developer. What you do actually? I do coding and I use different platforms for making new softwares. Okay, that's good. Yeah. So you're basically in the IT line. Yeah. So what's the exact location of your spouse in USA? Is he in the university or he has taken his own accommodation? He has his own accommodation. He lives in Pomerado Road, San Diego, California. Okay, and for how many years he's staying over there? It's been 1 year he's there. 1 year. Is he working over there also? No, he's not working. He's just studying. He's just studying. Yeah. So for how many days you want to go to USA? I'm only going for 2 weeks. 2 weeks only. Yeah. Okay, and do you have your itinerary with you? Like when you want to go, have you booked any tickets and No, anything I like that? haven't booked yet. After my visa approval, only then I'll book my tickets. Okay, so do you have the kids also? No, I don't have any. You don't have the kids. Congratulations, I am approving your visa. Thank you so very much for being here, and you'll get your passport within 10 days from now. Thank you. Hi everyone. I hope you really like this video. So this video was with Niharika and she is going for F2 case. F2 का मतलब कि इनका स्पाउस ऑलरेडी जा चुका है, यूएस में स्टडी कर रहा है एट अलाइंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. उनका F1 केस था. अब निहारिका जा रही है कुछ टाइम के बाद यूएस से इंटरव्यू के लिए और शी इज़ गोइंग ऑन F2 इंटरव्यू. इनको जो वीज़ा मिलेगा वो F2 टाइप का होगा और इनकी जो I-20 आई होगी उसके ऊपर F2 लिखा होगा. दैट मीन्स इट्स अ स्पाउस वीज़ा. ये वीज़ा स्पाउस के लिए जहाँ बच्चों के लिए होता है, मतलब स्पाउस ऑफ द मेन एप्लीकेंट एंड किड्स ऑफ द मेन एप्लीकेंट, उनके लिए वीज़ा होता है. सो इनके हस्बैंड है वो ऑलरेडी अलाइंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो सैन डिएगो कैलिफोर्निया में वहाँ पे पढ़ रहे हैं एंड हस्बैंड का कोर्स है MBA. एंड टॉकिंग अबाउट द निहारिका's प्रोफाइल, शी इज़ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन वन कंपनी इन इंडिया. सो लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द प्रोफाइल. क्या क्या उन्होंने बोला है और क्या उसमें अच्छा था. सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज पास मी योर पासपोर्ट एंड I-20 एंड शी हैज़ पास द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग DS-160 एंड सर्विस एंड रिसिप्ट. सो यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूँगा, आपसे जो मांगा जाए वही दीजिए. अगर पासपोर्ट और I-20 मांगी तो वही देना, सब कुछ नहीं देना. बट ठीक है, एक आधा डॉक्यूमेंट साथ चला भी जाए, डजेंट मैटर, बट फिर भी आपको कोशिश करनी है जो मांगा जाए वही प्रोड्यूस करो. सो आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा
कि जब भी आप यूएस इंटरव्यू के लिए जाएं, आप अपना ज़्यादा फोकस इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे रखें, ना कि आप अपना ज़्यादा फोकस डॉक्यूमेंट्स पे रखें। बिकॉज हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स में फ़ंड्स भी मांगे, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होती है आपकी ट्रांसक्रिप्ट या सर्टिफिकेट मांगे। और जो हमारे पंजाबी बच्चे जाते हैं वो इतना बड़ा झोला भर के लेके जाते हैं, इतना कुछ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही डॉक्यूमेंट कैरी करना, अपने एकेडमिक्स ले जाओ, सेविस की रिसिप्ट ले जाओ, अपनी I-20 ले जाओ, कन्फर्मेशन ले जाओ, DS-160, सो पासपोर्ट ले जाओ। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? So the question asked was why USA, and she was like, I want to meet my spouse who is studying in USA and we have plans to visit some other places in USA. Very good answer in a very framed manner. So the next question, what are you doing currently? So she said, I'm working as a software developer at a SCL company in Chandigarh. So यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा इसमें correction करना चाहूँगा, if possible इनको थोड़ा और elaborate करना चाहिए था about the present job. Like for how many months she is working, what's the salary she is getting, what is her job duties. So पूरा explain करते तो और भी better होता. So the next question was, what are your past qualifications? She said, I did BTech in computer science. That is really good. अगर उसमें percentage भी mention करती बहुत अच्छा होता. Next question was, when did you get married? So it was like, I married 1.5 years back, and she has mentioned the date as well. That's something very beautiful. Because mentioning the date is like a marriage is genuine. Because F2 cases में एक ही चीज़ प्रूव करनी होती, that is my marriage, my relationship is very genuine. So एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने let's suppose spouse केस है, आपके स्पाउस का वीज़ा आ गया, आपने उसके बाद शादी की है, तो वीज़ा निकलने के चांसेस बहुत कम है। सो मेक श्योर कि आपकी जो मैरिज 1 साल पुरानी हो तो उसमें चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्वेश्चन वाज, व्हेन डिड यू मीट योर स्पाउस? कहाँ मिले थे और कब मिले थे? इट वॉज ए अरेंज मैरिज। गुड आंसर कि अरेंज मैरिज थी, सो कुछ जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो विच प्रोग्राम इज ही स्टडिंग एंड व्हेन ही वांट्स टू गो टू USA? देखिए स्पाउस वीज़ा में एक चीज़ समझ लीजिए, आपको अपने स्पाउस के बारे में हर माइन्यूट डिटेल होनी चाहिए, उनके डेट ऑफ बर्थ से लेके, इसके अलावा डेट ऑफ मैरिज से लेके, इसके अलावा कौन कौन सी प्लेसेस पे आप गए थे, अगर आप हनीमून के लिए भी गए हैं उसकी भी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ में कोई आपने फॉरेन टूर किया उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो कौन सा प्रोग्राम में है, उसके प्रोग्राम के कितनी ड्यूरेशन है, कितने साल का प्रोग्राम है, कितने आवर्स की स्टडी है, वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, यूनिवर्सिटी का एड्रेस, यूनिवर्सिटी की डिटेल, यू शुड हैव एवरीथिंग इन योर माइंड अगर आप F2 के केस के लिए जा रहे हैं। सो शी स्टार्टेड डूइंग MBA एंड वेंट टू USA 1 year ago. सो 1 साल पहले जा चुके हैं तो वो अच्छा है। एक चीज़ और मैं टिप देता हूँ इसी वीडियो में, अगर आप कंसल्टेंट हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं तो किसी भी कैंडिडेट को मेन एप्लीकेंट के साथ इंटरव्यू मत करवाइए। दोनों को साथ में इंटरव्यू करवाने से वीज़ा बहुत कम चांसेस हैं कि मिले। सो करना क्या होगा, पहले आप मेन एप्लीकेंट की, लेट्स सपोज पहले हस्बैंड है, हस्बैंड की इंटरव्यू करवाइए, उनको वीज़ा मिल जाए। आफ्टर 6 months आप वाइफ की इंटरव्यू करवाइए, 100% वीज़ा मिलेगा, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, हु इज़ फंडिंग यू एंड योर स्पाउस? एंड शी सेड हिज फैमिली। बट अगर इस क्वेश्चन को और डिटेल में वो डिस्कस करती, अगर वो इसमें ये भी बताती उसकी फैमिली क्या करती है, अगर इसमें और डिटेल में एक्सप्लेन करती, तो इट्स समथिंग लाइक वेरी ब्यूटीफुल। सो उसको और भी एक्सप्लेन करना है कि उनके फैमिली का ऑक्यूपेशन क्या है, क्या कमाते हैं, कितनी इनकम है, लाइक एवरीथिंग, right? And then is how much you earn. So when he knows that she is working as a software developer, so he asked her कि like कितना कमाते हो? She was like 40,000 per month. That's a good answer. So अगर आप 20 भी कमाते हैं तो कम से कम 40 तो बोलिए। वहाँ वो चेक नहीं करने वाले कितना कमा, दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर सैलरी स्लिप, बिकॉज उनको पता सब फर्जी बन जाता है इंडिया में। सो नेक्स्ट इज, व्हाट आर योर जॉब ड्यूटीज? एंड शी वाज लाइक, आई हैव टू मेक न्यू सॉफ्टवेयर्स एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ये भी अच्छा है, शॉर्ट बट गुड आंसर, बट अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे तो और भी बेटर हो जाएगा। वेयर इज योर स्पाउस स्टडीइंग? इन हिज ओन अकोमोडेशन फ्रॉम लास्ट 1 year. देखिए ये आंसर उन्होंने अच्छा फ्रेम किया है, बट द मोमेंट दे आस्क हर कि यस वेयर इज योर स्पाउस स्टडीइंग, दैट मीन्स he wants to know the address, कहाँ रहते हैं, आपको एड्रेस प्रॉपर मेंशन करना होगा इसमें, राइट? सो नेक्स्ट इज he studying? She said yes, he is studying at this university. Then आपका ट्रिप कितने टाइम का होगा? Then for how many days or months you gonna stay? So officer, I am very engaged with my job, I have duties to perform, right? So I'm just planning for 2 weeks as of now. I believe this was really good interview, but अगर निहारिका इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करती तो और अच्छा होता।
सो अगर आपका भी स्पाउस केस है, आप यूएस जाना चाहते हैं बट स्ट्रगल कर रहे हैं किसी अच्छे कंसल्टेंट को मिलने के लिए, प्लीज़ कम एंड मीट मी। मैं यूएस के जितने भी F2 केसेस है वो पर्सनली देखता हूँ, साथ बिठा के प्रिपरेशन करवाता हूँ, और हमारे पास एम्बेसी सेटअप है, बहुत बड़ी टीम है इंटरव्यू प्रिपरेशन की। सो आपके लिए IBT ओवरसीज़ एक बेस्ट चॉइस है। अगर आप यूएस से जाना चाहते हैं आप कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए 8677812345 पे, जहाँ हमारी ब्रांचेस जो कि जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, संगरूर, पटियाला और करनाल में है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।